Students, today we discuss exercise 6.1. Question first. In figure 6.13, lines AB and CD intersects at O. In the figure, AB line and CD both are intersecting at point O. If angle AOC plus angle BOE means this angle AOC and angle BOE both sum is equal to 70 degree. And angle BOD means this will be BOD is equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE, इसका रिफ्लेक्स यानी बाहर वाला एंगल. ठीक है. सॉल्यूशन given that angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. This will be your equation first. And angle BOD is equal to 40 degree. Equation second. Lines AB and CD are intersecting at point A. Then AOC and BOD will be vertically opposite angles. Since lines AB and CD intersects at O. Lines AB and CD intersect at O. Then therefore angle AOC and angle BOD are vertically opposite angles. Angle AOC and angle BOD both are vertically opposite angles. Therefore angle AOC is equal to BOD. Angle AOC is equal to angle BOD, and BOD is what? 40 degree. This implies that angle AOC is equal to 40 degree. Now putting the value of angle AOC in equation first. Now we have AOC के प्लेस 40 डिग्री प्लस एंगल BOE is equal to 70 degree. This implies that angle BOE is equal to 70 degree minus 40 degree, and therefore angle BOE is equal to 30 degree. अब देखो, आपको निकालना था कि एंगल BOE की वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 30 डिग्री आ गई. अब देखो यहाँ पे हमको अब क्या निकालना? COE का रिफ्लेक्स एंगल. तो सबसे पहला काम कि हम क्या करें, एंगल COE निकाल दें. ठीक है. तो देखेंगे हम कि हमारे पास जो एंगल्स हैं, ये तीनों एंगल्स एक लाइन के एक ही तरफ है, तो इन तीनों का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा. यानी नाउ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE is equal to 180 degree. Since AOB is a line. अब AOB लाइन है तो लाइन के एक ही तरफ के एंगल्स क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं. Again from equation first, AOC plus BOE is equal to 70 degree. This implies that 70 plus angle COE is equal to 180 degree. Therefore angle COE is equal to 180 minus 70 degree. ठीक. अब देखो यहाँ से COE की वैल्यू क्या आ जाएगी? This implies that angle COE is equal to 110 डिग्री. अब देखो आपको आगे क्या करना होगा.
आपको जो है COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 is equal to 250 degree. Therefore, reflex angle COE is equal to 250 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना था एंगल BOE जो कि आ गया आपका 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल COE आ गया आपके पास 250 डिग्री। Next question number 2. In figure 6.14, line XY and MN intersect at O. Line XY and MN intersects at point O. If angle POY is equal to 90 degree, POY 90 degree, and A ratio B is equal to 2:3, फाइंड C फाइंड करना आपको। गिवन एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। ठीक, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, एंगल POY प्लस एंगल POX इज इक्वल टू 180 because these are linear pair angles. Since angle POY plus angle POX is equal to 180 degree, ये ऐसा क्यों है, ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं। एंड एंगल POY is equal to 90 डिग्री प्लस POX इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब देखो यहाँ से POX इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दिस इम्प्लाई दैट एंगल POX इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे A रेशियो B यानी A और B की बात हो रही है, तो A और B का सम कितना है, हमारे पास A और B का सम क्या POX है, यानी जो कि 90 डिग्री है। तो हम A और B के बारे में मान लें कि A की वैल्यू कुछ मान लें और B की, तो हम मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू क्या है, A आ जाएगा 3x। ठीक, और देखो एंगल A और B जो वैल्यूज होंगी इनकी, A प्लस B इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इसको इसी चीज़ को हमने POX को यहाँ निकाला हुआ है। दिस इम्प्लाई दैट A इक्वल टू 2x प्लस B इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाई दैट 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 18 डिग्री। x इज व्हाट, x इज 18 एंड we have to find out angle C. B and C both are linear pair angles because OX stands on line MN. तो हमको सबसे पहला काम कि B निकालना होगा। Now B या therefore B इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, 3x 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। नाउ B प्लस C इज इक्वल टू 180, ऐसा क्यों है, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक, अब देखो B है 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाई दैट C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, क्या आ जाएगा, 180 माइनस 54, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 और 1 126।
सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल है। ठीक, सोल्यूशन, गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इक्वेशन फर्स्ट, देखो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, लीनियर पेयर एंगल होंगे। नाउ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। एंड एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये क्यों, ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है, आप यहाँ भी लिख देना लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, अब दोनों की राइट हैंड साइड अब बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, राइट हैंड साइड्स आर इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब देखो यहाँ से पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। दिस इम्प्लाई दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.16 x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। यानी x प्लस वाई जो है w और z के सम के इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी लाइन है। अगर आप x प्लस वाई का सम 180 या w प्लस जेड का सम 180 प्रूव कर दो तो ऐसे केस में ए ओ बी क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। अब जब देखो यहाँ पे गिवन क्या आपके पास, गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब किसी पॉइंट के अराउंड जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब देखो z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दिस इम्प्लाई दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड दिस विल बी 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड यू हैव x प्लस वाई, यानी बोथ क्या लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। अब लीनियर पेयर एंगल का सम 180 क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाई दैट ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन। यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, ray OR is perpendicular to the line PQ, OR is perpendicular to the line, and this will be angle ROQ plus angle ROP will be 90 degree. OS is another ray lying between the ray OP and OR. OP और OR के बीच में एक लाइन OS है। Prove that angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle
POS। सॉल्यूशन देखो, सिंस OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, since OR is perpendicular to line PQ, therefore angle POR is equal to angle QOR is equal to 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमको क्या निकालना, ROS निकालना है, तो हम ROS निकालेंगे। तो ROS होगा क्या, ROS होगा, अगर हम POR में से POS को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ROS आ जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POR माइनस एंगल POS। इक्वेशन सेकेंड बना दो। एंड एंगल ROS, अब देखो ROS का अगर हम इधर से देखें QOS माइनस QOR अगर कर दिया जाए तो क्या आएगा, ROS आ जाएगा, इज इक्वल टू QOS माइनस QOR। इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर आप ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, वी हैव सेकेंड और थर्ड को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ROS और ROS, तो 2 एंगल ROS हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इधर देखो एंगल POR प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस एंगल POS, फिर इसके बाद प्लस एंगल QOS माइनस एंगल QOR। ठीक, अब देखो यहाँ पे POR और QOR दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, यानी ए वाला एंगल इससे कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम लिख क्या सकते हैं यहाँ से, 2 एंगल ROS इज इक्वल टू QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, और यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये क्या आ जाएगा, हमारा ROS की वैल्यू आ जाएगी, एंगल ROS आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज गिवन दैट XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखो करना क्या है, सबसे पहला काम कि गिवन क्या है कि XYZ एंगल XYZ, मान लो ऐसे कुछ, इधर हमारा ये क्या है, X है, यहाँ पे मान लो Y है और इधर कहीं Z, तो XYZ इक्वल टू हमारे पास 64 डिग्री। ठीक है, XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे, इधर प्रोड्यूस टू पॉइंट P तक आगे बढ़ा दो। ठीक है, इस लाइन को हमने पॉइंट P तक आगे बढ़ा दिया। ड्रा फिगर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दी गई उससे एक फिगर ड्रा करो। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP को अगर रे YQ बाइसेक्ट कर रही है, ऐसे कोई रे जो है YQ मान लो, इधर एक क्या है, रे Q। ठीक है, तो YQ अगर इसको बाइसेक्ट कर रही है, रे YQ जो है बाइसेक्ट कर रही है, फाइंड एंगल XYQ। ठीक है, यानी XYQ फाइंड करना है, और फिर क्या है, QYP का रिफ्लेक्स एंगल पता करना है, रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है, अब बताया गया कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, एंड और क्या है, YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, एंड रे YQ बाइसेक्ट एंगल
जेड वाई पी, जेड वाई पी को रे वाई क्यू क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू, पी वाई क्यू। ठीक है, कोई इक्वेशन बना दो, क्योंकि यहाँ पे जब ये बाइसेक्ट कर रहा है दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है कि एक्स वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई क्यू, तो यहाँ पे ये 64 है, यानी इसकी वैल्यू मिल जाए तो दोनों को ऐड करके हम एंगल्स निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सिंस, देखो जेड वाई पी प्लस एक्स वाई जेड दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी इज इक्वल टू कितना 180, एक्स वाई जेड जेड वाई पी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल्स है। ठीक है, दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है। अब देखो एक्स वाई जेड हमारे पास कितना 64 डिग्री, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितना है 64, और जेड वाई पी क्या है, दो एंगल्स का सम है, जेड वाई क्यू प्लस क्या है पी वाई क्यू, दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 64। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जेड वाई क्यू जो है इक्वल है पी वाई क्यू के, पी वाई क्यू के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, पी वाई क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री, यानी एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री आ जाएगा। एंगल जेड वाई क्यू कितना आ गया आपके पास 58 डिग्री। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्या है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितना है 64 प्लस यहाँ पे जेड वाई क्यू की वैल्यू कितना है 58, क्या है एक्स वाई और क्यू। ठीक है, तो अब आप यहाँ से लिख दो इधर, दिस इम्प्लाई दैट एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 4 8 12 आ जाएगा, 1 आएगा सब कैरी, 5 6 11 1 12, यानी 122 डिग्री एंगल आ गया। अच्छा, और क्या पता करना है, एक्स वाई क्यू तो आ गया आपके पास, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी किसके इक्वल है, देखो क्यू वाई पी या पी वाई क्यू बात वही है जेड वाई क्यू के। लिखेंगे देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, अब देखो क्यू वाई पी क्या आ जाएगा आपका 360 माइनस यहाँ पे क्यू वाई पी की वैल्यू कितना आपके पास है, क्यू वाई पी की वैल्यू आई 58 माइनस 58, तो आ जाएगा एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। ठीक है, 302 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एंगल है इसकी वैल्यू हमने क्या किया, पूरे में से 360 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा।